unrest taking place about the arrest and death in custody of a Kurdish girl over the issue of the hijab. Now, this incident could be related, could be. It is too early to speculate because we are awaiting for something official to emerge from either Iran or from Guangzhou, where this plane is supposed to land. I think it should be landing there shortly, and only after that will we be able to say something definitive. But the fact is, it seems to be related to that unrest. Maybe somebody was trying to use that to either come and seek asylum here or something like that, create an embarrassing situation. Because the moment it crossed Pakistani territory from Lahore, they claimed this bomb threat, and then it asked to land at Delhi. That was refused. It was told to land either at Chandigarh or at Jaipur, and the plane refused. Now, if there was really a bomb, the plane would not have refused. And the plane till now has crossed Indian airspace, Bangladesh airspace, has crossed Myanmar into China. There is no bomb. So quite obviously the bomb threat was a hoax. What exactly is behind this can only be said once the plane lands. It's a big day for inducted into IAF also. Rajnath Singh, Defence Minister, he said that there is no need to define Prachand. LCH is capable of sending out message to the enemy. So, right. You see, India is making great strides towards Atmanirbharta, towards autarky in weapon systems, critical weapon systems. It was a disgraceful fact that till now 70% of our military equipment was being imported. And this military equipment is now being manufactured in India. Our Navy is building a Navy, not buying a Navy. They have done the best. We have made the light combat aircraft, which is one of the best aircraft in its class. Number of other countries also want to buy it. People want to buy the BrahMos. Armenia wants to buy our Pinaka multi-barrel rocket launch system. The ATACMS gun that has come up is one of the world's best. So when we will be able to export this, we will get economies of scale. So this light combat aircraft or helicopter, light combat helicopter, is a very urgent requirement, because from the Sundarji era we wanted to have it as an extension of the combat arm of maneuver, right? Because it can help to destroy tanks, take on sudden attacks by tank columns coming in the deserts elsewhere. So it is a very useful instrument. We have the Apache, but that is 10 tons, and this is smaller, lighter, and then it can go operate in the high altitudes, especially against China, which is getting in a lot of tanks opposite Ladakh, etc. So this is a very great news, and I am very certain that in the days to come, we will achieve greater levels of autarky and indigenization. देखिए, जैसा आप जानते हैं, ईरान में बड़ा गदर हो रहा है. ईरान में वो वहाँ पे अनरेस्ट चल रहा है एक कुर्दिश महिला की पुलिस कस्टडी में मौत को लेकर. तो मुझे लगता है कि कहीं शायद इसका कोई उसके साथ रिलेशनशिप हो सकता है. बॉम्ब थ्रेट होक्स का बहाना लेकर शायद वो कुछ लोग जो है वो असाइलम सीकर बनना चाहते थे, सेंसेशनलाइज करना चाहते थे. हो सकता है. हमें तभी पता चलेगा जब ये जहाज़ ग्वांगझाऊ में लैंड होगा और तहकीकात होगी. जब ये जहाज़ ईरान से आ रहा था, पाकिस्तान पार करते ही खबर आई कि साहब लाहौर से कि इसमें बॉम्ब है, और हमने कहा कि आप चंडीगढ़ में लैंड कर सकते हैं, आप जो है जयपुर में लैंड कर सकते हैं. तो जहाज़ ने मना कर दिया और दिल्ली के चक्कर काटते रहा. इससे शक पड़ा क्वाइट ऑब्वियसली कि मंशा क्या है. और बड़ी मुस्तैदी से हमारी एयरफोर्स ने एकदम अपने Su-30 उड़ाए और इसको एस्कॉर्ट आउट किया भारत की टेरिटरी से. क्योंकि अगर कोई असाइलम सीकर या इस टाइप के लोग बैठे होते तो हमारे लिए एम्बैरेसमेंट होती. हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान की सरकार के साथ. फिर ये बांग्लादेश के ऊपर से होता, म्यांमार से होता हुआ अब चीन पहुंच गया है और मेरी समझ में लैंड करने वाला है. वहाँ चेक किया जाएगा कि बॉम्ब था भी कि नहीं. हमें तो लगता है होक्स था, क्योंकि अगर असली बॉम्ब होता तो क्या वो चक्कर काटते रहता? क्या अभी तक बॉम्ब फट नहीं जाता? तो बॉम्ब नहीं था, कुछ और माजरा था. क्या था एग्जैक्ट पता चलेगा जब जहाज
लैंड होगा। सर हाँ, देखिए, भारत एक उभरती शक्ति है, विश्व शक्ति है, और इसलिए बड़ी दुखद बात थी कि हमारे 70% कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है पिछले 8 सालों से, उसने बेइंतहा जोर दिया है कि हम अपने ही देश में मैन्युफैक्चर करें, हम आत्मनिर्भर हों डिफेंस के मामले में। तो इसके चलते साहब ये जो है, हम अभी अपने देश में अपनी नेवी का निर्माण कर रहे हैं, खरीद नहीं रहे अपने जहाज, खुद अपने देश में आपके डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर सब बन रहा है। ठीक है साहब, हम तोपें बना रहे हैं, टैंक बना रहे हैं, हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल हमने बनाया है, ये सब बाहर के लोग खरीदना चाहते हैं। और अब हमने लाइट अटैक हेलीकॉप्टर बना लिया है और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बना लिया है, जो कि बहुत मुफीद होगा आर्मर्ड वॉरफेयर में। और क्योंकि अपाशे हमारे पास है अमेरिकन, लेकिन वो 10 टन का है, वो पहाड़ में नहीं उड़ सकता। ये अब आप जानते हैं कि चीन बहुत सारे टैंक उसने लद्दाख के खिलाफ तैनात कर दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो अटैक हेलीकॉप्टर है, इस पे हेलिना मिसाइल एंटी टैंक लगा हुआ है, ये दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त कर सकता है। एंटी टैंक वेपन सिस्टम बहुत ही मुफीद और कारगर है। तो ये जो मिसाइल हम अपने, ये जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अपने हेलीकॉप्टर अपने देश में बना रहे हैं, उससे हमारी सैन्य शक्ति में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और इस तरह हमको आगे चलकर और भी सब कुछ अपने ही देश में बनाना चाहिए। अपना इंपोर्ट ज़ीरो करना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ा के, हाँ अगर बढ़ाएंगे तो हमको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिलेगी, ताकि हमारे जो यूनिट कॉस्ट हैं वो कम हो जाएंगे हमारी अपनी फ़ौज के लिए। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है। हमको ज़रूरत है कि हम जापान से कोलैबोरेट करें। हमारी प्रॉब्लम है इंजन्स में, एयरक्राफ्ट इंजन, सबमरीन इंजन, शिप इंजन, टैंक इंजन। तो जापान इंजन बहुत अच्छे बनाता है। अगर हम जापान के साथ समन्वय करेंगे, तालमेल करेंगे, जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे तो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।